لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑا ڈیپلی اس کے تعلق سے آپ سب کو بیان کر سکوں. امیر شخص اور لازر کے تعلق سے کون کون اس کے بارے میں پہلے سن چکا ہے؟ امیر شخص اور لازر کے بارے میں کبھی کلام سنا؟ نہیں سنا آپ نے؟ سب سے پہلے امیر شخص کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایک دولت مند تھا. یہ شخص کے پاس بہت دولت تھی، امیر تھا، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی. اور آگے لکھا ہے کہ ارغوانی اور معین کتانی کپڑے پہنتا تھا. یہ اپنے وقت کے کتان کے معین بڑے قیمتی لباس ہوتے تھے اور اس کی بڑی بڑی قیمت تھی. اور عام طور پر اگر اس کو کوئی پہنتا تھا تو وہ کوئی شاہی پروگرام کے لیے یا کسی تہوار پر عام طور پر ایسے کپڑے جو تھے وہ نہیں پہنے جاتے تھے، کیونکہ یہ قیمت میں بڑے مہنگے ہوتے تھے اور اس کی بڑی ویلیو تھی. اور خاص بادشاہ لوگ، امیر ترین لوگ ہی ایسے کپڑوں کو پہنتے تھے اور یہ بڑے ایکسپینسو قیمتی کپڑے تھے. اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا دولت مند ہے جو ہر روز خوشی مناتا ہے. کبھی کبھی خوشی نہیں، ہر روز خوشی مناتا ہے. ہر روز اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، لیکن کوئی عبادتی پروگرام نہیں. شراب نوشی، ناچ رنگ، یاری دوستی، لوگوں کو بلانا، کھانا پینا اور عیش کرنا. یاد رکھیں، امیر ہونا گناہ نہیں، امیر ہو کر خدا کو بھول جانا گناہ ہے. اگر امیر ہونا گناہ ہوتا تو خدا کے نبی پیغمبر یا خدام جو ہے کبھی بھی ان کے پاس دولت نہ ہوتی. بلکہ خدا جس کو بڑی رویا دیتا ہے، خدا اس کو بڑے وسائل بھی دیتا ہے. اگر خدا نے ابراہیم کو بڑی رویا دی کہ وہ میں تجھے ملک کنعان دوں گا، تجھے خدمت کا کام دوں گا، تو خدا نے ابراہیم کو اپنے وقت میں سب سے زیادہ دولت مند بھی کیا. کیونکہ اگر آپ کی رویا اس وقت زیرو ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے. خدا نے آپ کو خدمت کے توڑے دیے ہیں، بلیسنگ دی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں، خدا نے آپ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں، تو وہ ویژن کو پورا کرنا آپ کے لیے کوئی بہت آسان کام نہیں ہوگا. تو خدا جب بھی رویا دیتا ہے، خدا ساتھ وسائل بھی دیتا ہے. میں ایک خاص بات آپ کے ساتھ کروں گا. مقدسہ مریم کا خاندان کوئی امیر خاندان نہیں تھا. مقدسہ مریم کا خاندان کا تعلق جو تھا ایک نارمل خاندان کے ساتھ تھا. نہ تو وہ بہت غریب تھے، نہ وہ بہت امیر تھے، بلکہ ایوریج نارمل خاندان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا تعلق تھا. اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جب ختنے کا دن آیا تو مقدسہ مریم نے کمریوں کی، پرندوں کی قربانیاں پیش کی. اور شریعت کے مطابق پرندوں کی قربانیاں جو غریب خاندان یا نارمل خاندان تھے وہ پیش کرتے تھے. امیر خاندان ہمیشہ جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے تھے. اب ان کا تعلق جو تھا ایک نارمل خاندان کے ساتھ تھا. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی اس وقت کے حاکم نے چاہا کہ اس علاقے کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو مار دیا جائے، تو خدا نے مجوسیوں کے ذریعے مقدسہ مریم کو، ان کے خاندان کو وسائل دیے. ان کو سونا ملا، مر ملا، لبان ملا. ادھر صرف 3 مجوسی نہیں بلکہ کئی مجوسی آئے اور سب نے مل کر سونا، مر، لبان ان خاندان کو پیش کیا اور اسی کو بیچ کر، اسی کو استعمال کر کے مقدسہ مریم نے مصر آنے جانے کے خرچے کو جو ہے وہ افورڈ کیا. اگر باہر کے ملک میں جانا ہو تو جانا آسان نہیں ہے، بڑا خرچ آتا ہے. لیکن ایک ایسا خاندان جو پہلے غریب ہے اور خدا نے اس کو رویا دے دی کہ ادھر سے جا اور مصر جا کے شفٹ ہو جا. اب انہی چیزوں کو استعمال کر کے وہ مصر میں گئے. تو یہ ایڈیشنل بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ امیر ہونا گناہ نہیں ہے، امیر ہو کر خدا کو بھول جانا گناہ ہے. بلکہ خدا اپنے لوگوں کو، خدام کو، بڑی رویا والوں کو لازمی وسائل دیتا ہے. خدا ریسورسز دیتا ہے تاکہ آپ اس کی خدمت کا کام کریں. آمین. اب بات کریں گے اس امیر شخص کے تعلق سے. اب یہ شخص امیر ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر کلام نہیں ہے، یہ کوئی روحانی شخص نہیں ہے، بلکہ اس کا کام عیش کرنا، پارٹیاں کرنا، ضیافتیں کرنا، یاری دوستیاں کرنا، کھانے کھانا. خدا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ہر روز یہ معین کتانی کپڑے پہنتا تھا باجی.
समझ आ रही है इस बाजी को? सामने देखें, ये हर रोज मोयन की तानी कपड़े पहनता था, हर टाइम ब्रांड के कपड़े, महंगे कपड़े, इतनी दौलत सी इस शख्स को, सब कुछ इसके पास था। लेकिन हुआ क्या, कलाम में लिखा है कि शानो शौकत से रहता था। कैसे रहता था? शानो शौकत से रहता था। क्यों? बहुत पैसा था, बड़ी दौलत थी, अच्छा खान पीन सी, अच्छी दौलत सी, बस यारी दोस्तियां दे काम सी जेड़े खुदा दे नजदीक अच्छे नहीं सी है। एक दिन क्या हुआ, और लाजर नाम एक गरीब, दो किरदार, एक अमीर एक गरीब, एक बहुता अमीर एक बहुता गरीब, एक गरीब नासूरों से भरा हुआ। नासूर किसे बोलते हैं, किसी को पता है? थोड़े जख्म जो ठीक ना हो, जिसमें से पीक निकले। और ये शख्स नासूरों से भरा हुआ, और उसके दरवाजा पर डाला गया। आमीन। एक शख्स, ये दो किरदार हमें मिलते हैं, एक शख्स बहुत अमीर है, एक शख्स बहुत गरीब है। एक ब्रांड के कपड़े पांदा वा, एक दे कोल कपड़े कोई नहीं। एक अच्छे अच्छे खाने खांदा है, शानो शौकत नाल रहंदा है, एक दा कोई आसरा ही कोई नहीं। हुण कलाम च लिखा है कि इस गरीब शख्स को अमीर शख्स के दरवाजा पर छोड़ दे, ओदी गली च ओदे कोल छड़ के चले गए। याद रखिए, जब तक आपके पास पैसा है, आपके हर रिश्तेदार आपको मिलेंगे, जेड़े तानू कदी नहीं भी मिले वो भी मिलेंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार सब आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप खाली हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता, लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाते हैं। अब इस बेसहारा शख्स से साबित होता है, इहदे दोस्तां ने इहनूं छड़ दिता, इहदे रिश्तेदारां ने इहनूं छड़ दिता, इहदे खानदान ने इहनूं छड़ दिता, कल्ला शख्स ते उतों बीमारियां ना भरिया होया। अगर कोई बहुत देर बीमार रहे ना, तो खानदान के लोग खुद ही कहना शुरू कर देंगे, खुदा इहनूं पड़दा दे। ऐदा भी तो बीमारी दे विच पिया, खुदा इहनूं पड़दा ही दे दे। हुण इस शख्स दा ऐसा होया, खानदान ने भी छड्डिया, कोई रिश्तेदार पिछे नहीं, कोई माँ बाप, कोई भैन भरा का जिक्र इत्थे नहीं मिलता। ऐसे किरदार हमें बाइबल में कई मिल जाते हैं। जिस शख्स में लश्कर था, बदरूहों से भरा हुआ था, उस शख्स ने उहदे खानदान ने छड्डिया, उहदे माँ बाप भैन भरा दोस्त सब ने छड्डिया, क्योंकि उसके अंदर मारने और मरवाने वाली रूह थी। या आप मर जाना है या दूसरे नूं मार देना है। ते लोग उन्हें कब्रिस्तान दे विच जंजीरां च बंद के कब्रिस्तान च छड्ड आए, सब ने उसे छोड़ दिया। और कलाम में लिखा है कि वो अपने ताई जो था वो जख्मी करता था। लेकिन एक दिन खुदावंद यीशु मसीह उस जगह तो गुजरे। खुदावंद यीशु मसीह किसी सड़क तो भी जा सकते सी, ठीक रस्ते च, कोई भी कब्रिस्तान च गुजरना नहीं चाहता, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने स्पैशल सफर उस शख्स ने किया कि कब्रिस्तान के विचों दी होके गुजरे, तो उस शख्स को लश्कर तो आजाद किया। याद रखें, लोग छोड़ देते हैं, रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं, दोस्त भी छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ता। वो एक अकेला शख्स था, वो एक अकेला शख्स था, कोई उसके पास नहीं था, लेकिन यीशु उसके लिए आया। इसी तरह एक 38 बरस का बीमार शख्स बैठे हस्दा पर पड़ा हुआ था, और उसका क्या गिला था, कहता मेरे पास कोई नहीं, बाकी गल्लां छड्डो, मेरे पास कोई नहीं, छड्डिया सी सारे। कोई माँ बाप नहीं, कोई भैन भरा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई अजीज नहीं, 38 साल का बीमार। मैं अगे तुहानूं दस्सिया कि साडे अज भी इस तरह ही है। अज 38 साल तो घर कोई जी बीमार है, लोग आप ही कहते खुदा नूं पड़दा दे, खर्चे नहीं होंगे, और उसके भी खानदान सारा छोड़कर फौज के पास चला गया। जे कदी किते गलती ना भुलेखे ना कोई छलंग वज गई, खुदा ने एक इंतजाम किया कि खुदा का फरिश्ता आंदा सी ते पानी नूं हिलांदा सी, ते कोई भी बीमारी होए जिहड़ा पहले छलंग मार दिंदा सी वो ठीक हो जाता सी। इस जगह का नाम था बैते हसदा। हसदा का मतलब है रहम की जगह,
बैत का मतलब है घर, हसदा का मतलब है रहम, यानी रहम का घर। लेकिन इत्थे रहम वाली गल ही कोई नहीं। हर किसी नूं अपनों अपनी सी कि पहले मैं छलंग मार देवां ते शिफा पा जावां। लेकिन इस शख्स ने गिला किया कि मेरे पास कोई नहीं जो मुझे पानी में उतारे। क्या गिला किया? सारे बोलो, मेरे पास मुझे पानी में उतारे। आज बैते हसदा खुदा का घर है और पानी में उतारने वाले खुदा के खादम है आपके लिए। और यसुम सी उसके पास आए। जब जिस दिन यसुम सी आया उस दिन कोई फरिश्ता नहीं आया। और यसुम सी ने जब उसको देखा, यसुम सी स्पेशल उसके लिए आए। 38 सालों से बीमार, ईमान में कमी नहीं आई। आज लोगों को 38 दिन जो शिफा ना मिले तो लोग पीरा फकीरा को भज जाते। 38 साल तो ईमान च मजबूत रहा कि एक दिन पानी हिलेगा तो मैं सब तो पहले छलांग मारांगा तो मेरी बीमारी जाएगी। लेकिन उस ईमान की वजह ना बेशक उन्हें सब ने छड़ दिता, लेकिन यस्सू ने नहीं छड्या। यस्सू बैते हसदा च आया तो यसुम सी ने कहा अपनी चारपाई उठाओ। यसुम सी ना सिर्फ शिफा दिंदा है बल्कि तुहानू निशान भी दिंदा है कि तुहानू मैं शिफा दी। लोग छोड़ देते हैं, यस्सू नहीं छोड़ता। अब इसी तरह एक ये शख्स है जिसका नाम लाजर है। सब ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया और उसको अमीर शख्स के पास उसकी गली में दरवाजे के पास छोड़कर चले गए। उन्हें गल नूं गौर नाल जरा समझियो। उन्हें अमीर शख्स का की कसूर है जे आप होता गरीब। अमीर शख्स सोच सकता सी मेरी दौलत है, मेरी मेहनत है, मेरा पैसा है, मैं जिसका मर्जी इस्तेमाल करा। तो जे गरीब है तेन मैं क्या गरीब हो, जे फोड़े खराब होए ने तो मैं क्या फोड़े खराब हो, जे मेरी गली जिन्होंने सुट गए ने तो मेरी जिम्मेदारी मैं इन्हू खवाना। लेकिन नहीं, खुदा के नज़दीक ये बातें ज़रा मुख्तलिफ हैं। इस शख्स को इसके पास छोड़कर चले गए। कलाम में लिखा है कि ये नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। आमीन। अब हुआ क्या? उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों। आमीन। सामने देखियो, बड़ी सीखने वाली गल। इस शख्स के जिस्म के फोड़े थे ते फोड़े इन्ने खराब हो चुके सी कि आम गली के कुत्ते आके दी पीक नूं चटदे सी। कलाम में लिखा है कि कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को। तुसी अंदाजा लगाओ एक शख्स दा की हालत होएगी। ते ऐसे गरीब शख्स दे कोल एक शख्स ऐसा सी अमीर जिहड़ा ब्रांड दे कपड़े पा के लंघदा सी। किदे कोल? जिहदे जिस्म दे फोड़े खराब ने, पीक निकलदी ते कुत्ते आके उन्हें चटदे ने। गरीब है ते ओहदे कोलों ब्रांड दे कपड़े पा के शाही अंदाज ना गुजरदा सी। हुण तुसीं कहोगे मेरे अपने कपड़े, ये चीज़ां खुदा दे हुज़ूर मैटर करदियां हैं। इस शख्स कोल ओवर सब कुछ है। एक शख्स ऐसा जिहदे को बहुता ही कुछ नहीं है, लेकिन ये शख्स अमीर मुअय्यन कितानी कपड़े पहनकर इसके पास से गुजरता था। ये क्या करता था? ज़ाया कर देता था, लेकिन कभी उसने गरीब लाजर को रोटी का टुकड़ा बचा हुआ नहीं दिया। गरीब शख्स की कोई आ ख्वाहिश नहीं सी कि मैं उहदे नाल खाना खावां। ਉਹਦੀ ਇਹ ख्वाहिश सी कि बचिया होया कोई टुकड़ा ही मिल जाए मैनू, लेकिन वो उसको नहीं देता था। अज भी साडे विआहां शादियां होण ना ते बचे हुए नान पए हुंदे ने अक्सर, ते कोई मंगण वाला नान चुकण आ जाए ते भजा दें, चल भज जा इत्थों। उन्होंने नान नहीं दिंदे, उन्होंने कोई चीज़ नहीं दिंदे, बल्कि उन्हें भजा भजू दिंदे। खुशी के मौके पर भी किसी गरीब की मदद नहीं करते। इसी तरह ये शख्स उसके पास से गुजरता, देख के कतरा के गुजर जाता था। एक ब्रांड के कपड़े पाए हुए शख्स की काहदी जरूरत है कि किसी की पीक नूं हथ लाए, खराब फोड़िया नूं छेड़े, किसी गरीब नूं संभाले। मगर वो दिल च सोचता रहिंदा सी कि मैनूं कोई बचे हुए टुकड़े मिल जाण, क्योंकि मैं भी किसी दिन बेशक बचिया होया ही खाना ही, लेकिन कदी अच्छा खाना खा ला। लेकिन कलाम में लिखा कि वो उसको नहीं देता था। आगे पढ़ो अपनी अपनी बाइबल, तो सोना नहीं, आगे पढ़ो। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया। कौन मर गया? पहले कौन मरया?
अमीर मरिया या गरीब मरिया? गरीब मर गया। और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। फरिश्तों ने उसे ले जाकर कहां पहुंचा दिया? इब्राहिम दी गोद। एक गल मेरी याद रख करियो, शायद तुसी नोट ना किया है, मेरे वाल देखो, आन दो जड़ा आ रहा है। एक दिन गरीब मर गया तो कलाम च लिखा है कि उस गरीब नूं ले जाके बाप इब्राहिम दी गोद च पहुंचा दिता। हालत की सी जमीन ते? ना सूरा ना भरिया होया, गुरबत ना भरिया होया, सब ने छड्डिया ते गया किथे? फिरदौस अब्राहम दी गोद च। किसी दी पुरानी बीमारी नूं देख के तुसीं अंदाजा नहीं ला सकते कि इहदियां कीतियां दे अगे आईयां। अज कई लोग इस तरह ही करते हैं, कोई बहुता बीमार होवे ते कहणगे इहदियां कीतियां ही दे अगे आईयां। जिद्दां दी जिंदगी से इंज ही होना चाहिए सी। किसी की बीमारी का अंदाज़ा लगा कर आप ये नहीं कह सकते कि उसके गुनाह आपके आगे आए हैं। देखें, गुनाह ना दा जिक्र नहीं, मगर गुरबत ना भरिया, ना सूरा ना भरिया, मगर जो मर गया तो गया किथे? खुदा दी बादशाही च गया, फिरदौस दे अंदर, बाप इब्राहिम दी गोद च गया, फिरदौस च गया। अज बेशक कोई गुरबत च, बेशक कोई परेशान है, बेशक वो अंदर नसूर है, बेशक किसी दुखा च, मगर अगर वो अंदर ईमान है, अगर वो अंदर यसू है, वो भी खुदा दी बादशाही च जाएगा। आमीन। आपकी बीमारियां या गुरबत इस बात का सबूत नहीं कि आप जहन्नम में जाएंगे। आप गरीब हैं, इधर गरीब हैं, कलाम में लिखा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। आमीन। ये शख्स ने जमीन पर कभी खुशी नहीं देखी, जमीन ते ना सूरा ना भरिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बाप इब्राहिम दी गोद से। लोग सोचते होंगे कि गुनाह दे अगे आए ने, इहदियां कीतियां दे अगे आईयां, अपने कम्मां च फसिया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसके अंदर एक ईमान है। दौलत आपको खुदा के पास नहीं लेके जाएगी, आपका ईमान आपको खुदा के पास लेके जाएगा। आपका ठीक जिस्म आपको बादशाही में लेकर नहीं जाएगा, आपका ईमान आपको बादशाही में लेकर जाएगा। अब ये शख्स बाप इब्राहिम की गोद में गया। अब अमीर शख्स के साथ क्या हुआ? और कलाम में लिखा है, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। जे मरना गरीब ने तो मार अमीर ने भी जाना है। कबर दोवां दी सेम ही हुंदी, जाना दोवां ने मट्टी च ही है, मरना दोवां दा वाजिब है, लेकिन डिपेंड है करदा कि तुसीं जाओगे किथे, जिथे लाजर गया या जिथे अमीर शख्स गया। अमीर शख्स ने अपनी जिंदगी च ब्रांड के कपड़े पाए, मुअय्यन कितानी कपड़े पाए, ऐश की, खाने खाते, ज़ियाफत की थी, यारी दोस्तियां देखियां। लाजर ने ऐसा कुछ नहीं देखा। ईमान अंदर सी, ईमान च मजबूत सी, बेशक गुरबत सी, बेशक बीमारी सी, लेकिन फिर भी ईमान की वजह नाल इब्राहिम की गोद च गया। फिरदौस का दूसरा नाम बाप इब्राहिम की गोद है। बाप इब्राहिम की गोद भी बोला जाता है, फिरदौस भी बोला जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि फिरदौस किधर है। आगे लिखा है, उसने आलम रवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई। किसने अजाब में मुब्तला होकर आंखें उठाई? अमीर शख्स ने आंखें उठाई। कोई बताएगा कि बाप इब्राहिम की गोद या फिरदौस किस जगह पर है? पता आपको? बाप इब्राहिम की गोद किस जगह पर है? आसमान पर। फिरदौस किथे है? आसमान पर। फिरदौस किथे है? फिरदौस जमीन दे थल्ले है, पाताल चो। किसी नहीं सी पता, भाई नूं पता सी। जमीन के नीचे पाताल आ। पाताल के दो हिस्से है, एक अच्छा हिस्सा, एक बुरा अग वाला हिस्सा। इन्हां दोवां के दरम्यान च एक गड़ा वाकिया जिथे अथाह गड़े का फरिश्ता तैनात है। ना इधर वाले उधर जा सकते, ना उधर वाले इधर आ सकते, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक गड़ा वाकया है।
اور جو जिधर ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं, उधर अब्राहम है। ईमानदारों का जो हेड है, फरदौस का जो हेड है वो अब्राहम है, इसलिए उसे ईमानदारों का बाप बोला जाता है। पुराने अहद में जितने भी लोग मरते थे वो आसमान पर नहीं जाते थे। आदम तो लैके यसू तक जिन्ने भी लोग मरे ने सारे जमीन के थले गए ने। अच्छे लोग फिरदौस च, बुरे लोग अग वाले हिस्से च, जिन्हों पताल बोलते हैं। इस पूरी जगह को बोला जाता है आलम अरवाह। आलम में अरवाह, रूहों की जगह। ना इधर वाला उधर जा सकता, ना उधर वाला इधर जा सकता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा वाकया है, जिधर अथाह गड़े का फरिश्ता तैनात। अब बेशक अच्छा हिस्सा है या बुरा हिस्सा है, पूरा कंट्रोल इब्लीस के पास था, अथाह गड़े के फरिश्ते के पास था। जादूगरों के पास भी ये पावर थी कि किसी की भी रूह को ऊपर भेज देते थे। साउल के बारे में कौन कौन जानता? साउल के बारे में कौन था? साउल इसराइल का पहला बादशाह साउल था। जब सैमुएल फोत हो गया, सैमुएल नबी, तो एक मौका पर साउल एक जादूगरनी के पास गया। जादूगरनी को जाकर बोला कि मेरे लिए किसको बुला दे? सैमुएल की रूह को बुला दे। सैमुएल की रूह उस वक्त, क्योंकि वो नबी था, आग वाले हिस्सा में नहीं, बाप इब्राहिम की गोद में अच्छी जगह पर था। उन जादूगरनी ने अपने जादू मंत्र पढ़े ते पानी ते छबी सैमुएल नबी दी आ गई। सैमुएल नबी ने उन्हें ऊपर बुला लिया, क्योंकि इब्लीस दे कोल अथॉरिटी सी, क्योंकि कंट्रोल अच्छी हिस्से दा भी बुरे हिस्से दा भी इब्लीस दे कोल सी, जिहदी मर्जी रूह ऊपर भेज दिंदे सी। आदि एक तमसील पेश की थी खुदावंद यसू मसीह ने, जिहड़ी असीं पढ़ते पे हैं। यसू मसीह दे अल्फाज ने, अमीर भी मर गया, गरीब भी मर गया। अमीर गया अच्छे हिस्से च, बाप इब्राहिम दी गोद च, ते सुते हो। अमीर शख्स गया गरीब लाजर गया बाप इब्राहिम की गोद में, अमीर शख्स गया आग वाले हिस्से में। और जब दोनों ने एक दूसरे के साथ बात की तो बाप इब्राहिम ने कहा हम इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि हम दोनों के दरमियान एक गड़ा वाकया है। जिहड़ी गल मैं कहने आ यसू दी तस्दीक तमसील बयान जे बाइबल च, तुहानूं एक होर गल दसना दा सबूत आ जिहड़ी गल मैं कर रहा। खुदावंद यसू मसीह ने डाकू नूं कहा, कई लोग कहते डाकू भी तो बपतिस्मे तो बगैर गया ही है बादशाही च। मैनूं बाइबल च साबित करो जे डाकू बादशाही च गया। यसू मसीह ने डाकू नूं कहा सी, तू आज ही मेरे साथ बादशाही च नहीं गया, बादशाही होर चीज आ, बादशाही आसमान ते आ। यसू मसीह तक जिन्ने भी यहूदी तर्ज दे लोग सी सारे ही पताल च जाते सी। यसू मसीह बाइबल साफ बयान करती है कि यसू मसीह 40 दिन बाद जिंदा आसमान ते गए। किन्ने दिनों बाद गए? तो फिर डाकू ने क्यों गलबात सुनाई सी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? आप तो 40 दिनों बाद गए। वेरी गुड। यसू मसीह आसमान ते गए ही नहीं, यसू मसीह 40 दिन बाद गए। तो डाकू को ये बोला था, क्योंकि डाकू ने पहले कीतियां सी बुरे काम, है वो भी डाकू नहीं सी ओरिजिनल, एवं उन्होंने केस पाए सी, परचे दिते सी, बेसिकली हुकूमत के बागी सी रोम के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने डाकू कहा गया, मान लेने, क्योंकि जिदा मिसाल के तौर पर साड़ी पंजाब पुलिस आ, जिते मर्जी चर्च पा दो 10,000 रुपया दे के, जिते मर्जी जड़ा मर्जी परचा दे दे। ऐसे तरह ही इन्होंने फसाया सी, क्योंकि उस दौर के बागी सी। दोवां ने गल, एक जड़ा सी यसू मसीह ते ईमान लै आया, एक नहीं लिया, एक मजाक कर रहा सी, एक समझ गया, दूसरे ने झिड़किया, कहता सी ते अपनियां कीतियां दी सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। इट मीन्स ये डाकू मान गया कि ये रास्त शख्स है और मैं गुनाहगार हूं। इनू ही तोबा कहते, मान लेना कि तेरे ही हजूर विच मैं बदी की सारी।
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜਾਏ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜਾਣਾ? दिस इज फेथ, ये ट्रस्ट है डाकू का। कहना जदों तू अपनी बादशाही च जाए मैनू याद रखी। ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਕਿ मैं अग वाले हिस्से च जाना, क्योंकि यसु मसीह पाक हस्ती सी, उन्हें अच्छे हिस्से च जाना सी, फिरदौस। यसु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगे तू ओले हिस्से च जाना सी, तू मेरे नाल आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यसु मसीह ने उधर कैदी रूहों में मुनादी की, और यसु मसीह ने तमाम रूहों को वहां से निकाला, ते आलमे अरवाह दे ला दिते ताले। फिर यसु मसीह ने कहा आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, अब मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हुण शैतान ते दूर दी गल, किसी जादूगर माई दे लाल दे विच जुरत नहीं हैगी कि किसी नबी पैगंबर दी रूह नूं उपर बुला दे, क्योंकि उत्थे यसू ने ताले लाए ने। हुण कोई किसी दी रूह नूं नहीं बुला सकदा। हुण किसी जादू पीर फकीर दे विच एडी पावर नहीं है कि सैमुअल नबी दी रूह नूं उत्ते बुला दे। ओही जोर यसू ने तोड़िया। और मुकाशवा की किताब में लिखा है फिर मौत और आलमे अरवाह आग की झील में डाल दिए गए। आलमे अरवाह ते खुद आग दी झील च जाना। और यसु मसीह ने कैदी रूहों को आजाद किया। इसलिए जो बात बपतिस्मे की है वो आपको बादशाही में लेके जाता है। डाकू पर बपतिस्मा लागू ही नहीं होता था, क्योंकि यसु ने उदों जान ही नहीं सी दी। बपतिस्मा यसु दे लहू दे मुशाबे है कि मैं अपनी मसीह यसु दे विच मर गया तो मैं जी उठांगा, तो यसु मसीह तो उदों मरे ही नहीं सी। तो यसु मसीह ने अहद दिता कि यसु मसीह तक सारे ने पताल च जाना सी। जो यसु मसीह ने जान दे दी, हुण अज जो असीं मसीह यसु च नवें सिरे तो पैदा होने, असीं फिरदौस च नहीं जाते, बल्कि कित्थे जाते हैं? बादशाही में। निकोदेमुस को यसु ने क्या कहा था कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की फिरदौस को, बादशाही को। आज की साल्वेशन बैप्टिज्म हमें बादशाही में लेके जाता है। यसु मसीह ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। यानी कि हम नीचे नहीं जाने वाले, जिधर बाप है वहां हम भी होंगे। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, सबके लिए नहीं है। अभी गल ज़हन च रखे, यसु मसीह ने कहा बहुत, यसु मसीह ने सबके लिए नहीं कहा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, जाने वाले थोड़े हैं। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। खुशकिस्मत है ईमानदार, अज 2024 साल हो चुके ने, क्या ही आला ते शानदार कार होंगे जड़ा यसु मसीह साडे लिए तैयार कर रहे हैं। अज तक यसु मसीह कह रहा है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। आमीन। तो आप ऐसे घरों में रहेंगे। आज आपके पास बेशक लाजर की तरह गुर्बत हो, घर च कोई सोने चांदी की शय ना होए, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है कि सोना आपके पांव के नीचे होगा। आप सोने की सड़कों पर चलेंगे। आमीन। आमीन बोलोगे तो चलोगे। उथे सोने दियां सड़कों ते असी चलांगे। एक वक्त ऐसा आएगा। अब कलाम में लिखा है उसने आलमे अरवाह के दरमियान असाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई। अग दे विच भी, पताल दे विच भी अखां काम करदियां जे। ये बड़ी मैं खास बातें बता रहा हूं, गौर से समझें इसको। अगर कोई मरण तो बाद अच्छे हिस्से च जाए या भावें बुरे हिस्से च जाए, अखां दोवां दियां काम करदियां जे। जिन्हों नहीं सी पता, मरण तो बाद जेडे जी साडे कोलों चले गए ने, कोई अच्छे हिस्से च जाए या बुरे हिस्से च जाए, अखां काम करदियां जे। और कलाम च लिखा है कि अमीर शख्स ने अपनी आंखें उठाई अजाब में, और अब्राहम को दूर से देखकर, क्योंकि दोनों के दरमियान एक गड़ा वाकया था, दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को एक आला मकाम मिला। जैसे बेटे को
کہ یسوع مسیح باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے، اسی طرح لازر کا مقام ابراہیم کے پاس ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی غربت، آپ کے ناسور اس بات کا ثبوت نہیں کہ تاڑیاں کیتیاں تاڑے اگے آئی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہے، بے شک آپ غربت میں ہیں، آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اب اس امیر شخص نے دور سے ابراہیم کو دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آنکھیں کام کر رہی ہیں، اس کے بعد اور اس نے پکار کر کہا، زبان بھی کم کر دیجئے ہوتے تسی گلاں بھی کر سکتے ہو، بے شک کوئی اچھے حصے چ جائے یا پاویں اگ والے حصے چ جائے، وہ تو ڈسکشن ٹاکنگ نہیں ہوندی جی۔ اور اس نے پکار کر کہا، کیا پکار کر کہا؟ اے باپ ابراہیم۔ سارے بولے، کیا بولا؟ اے باپ ابراہیم۔ اس کا مطلب اس نے ابراہیم کو باپ بولا، اس کا مطلب کہ امیر شخص جو تھا وہ یہودی تھا، کیونکہ صرف یہودی لوگ ہی ابراہیم کو باپ بول سکتے ہیں۔ یہ ایک بگڑا ہوا یہودی تھا، یہ ایک بگڑا ہوا ایماندار تھا جو گناہ میں جا چکا تھا، اور آگ میں کہہ رہا ہے ابراہیم کو، اے باپ، اے باپ۔ اس کا مطلب کہ یہ یہودی تھا۔ اور ابراہیم نے آگے سے کیا کہا؟ ابراہیم سے کہتا ہے، مجھ پر رحم کر۔ کیا کر؟ رحم کر۔ زمین تے جنی دیر تک زندہ سی اپنے لیے رحم نہیں منگیا، تے مرن تو بعد ابراہیم نو کہن ڈیا کہ میرے تے کی کر۔ اج معافیاں منگنیاں تے زندہ حیات چ ہونے ہی منگو، خدا دے کولوں رحم منگنا ہے ہون منگو، تسی اچھے حصے چ جاؤ یا برے چ، اوتھے رحم نہیں چ ہوندا۔ تے نہ ہی جڑے دنیا تو جا چکے نے انہاں نوں کوئی ثواب ہوندا جے، نہ ہی دعاواں کر کے تسی کسے نوں بچا سکدے ہو۔ ادیگاں اے ثواب اے تہاڈے اپنے خیالات۔ میموریل سروس دیاں عبادتاں بھی ساڈے واسطے زندہ لی ہوندیاں ہیں کہ اسی بھی اپنی زندگی تے غور کریے کہ جان والا چل گیا، اسی بھی جانا ایک دن، کیونکہ مار غریب بھی گیا سی، مار امیر بھی گیا سی، تو مار اسی بھی جانا۔ اور ابراہیم کو کہہ رہا مجھ پر رحم کر۔ ہن ایسی جگہ تے ہے کہ جتھے رحم نہیں ہو سکتا۔ خدا کو رحم منگنا ہے ہون منگو، توبہ کرنی ہے ہون کرو، نویں سرے تو پیدا ہونا ہے ہون ہوو، جھوٹ چھڈنا ہے ہون چھڈو، بدی چھڈنی ہے ہون چھڈو۔ بعد چ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نو کہنے میرے تے رحم کر۔ رحم کادا کر؟ اپنی بائبل پر دیکھیں کیا رحم مانگا۔ مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج۔ کس کو بھیج؟ اینوں کیتا پتا لازر دا؟ محلے چ تے کدی انہیں دیا لکھاں نہیں کیتیاں، محلے چ تینوں کدی دے کے راضی نہیں سی۔ کیوں نہیں تھا راضی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی امیر ہوئے گا نا، عام طور پہ کوئی بہتا امیر ہوئے نا تو غریب دے کو روٹی بھی نہیں کھانا، ایسا نہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا غریب ہے جو بہت غریب ہے، نسوروں سے بھرا ہے، جسم سے پیک نکلتی ہے، وہ برانڈ دے کپڑے پان والا، وہ انگلی لانا بھی پسند نہیں سی کرتا کہ میرے جمس نہ لگ جائیں۔ انہیں کدی انگلی لگانا بھی انہوں پسند نہیں کیتا، مگر دا مطلب کہ انہوں پتا سی وہ دے نام دا بھی او دا بھی۔ ہن تسی کہو کہ ساڈے کول کیڑا لازر ہے، آ بھی تہاڈے ذہن چ خیال آ سکدا۔ تسی امیر ہو یا لازر ہو؟ پہلے آ دسو، امیر شخص ہو یا لازر ہو؟ اس ٹائم زندہ ہو، تسی کدے چ شامل ہو؟ امیر شخص یا لازر چ؟ لازر تے پھر غربت نہ بھریا سی، نہ سورا نہ بھریا سی، تے امیر شخص چ رحم ہی کوئی نہیں سی، وہ آکڑ نہ بھریا سی، وہ غربت نہ بھریا سی۔ یاد رکھے میں پہلے بولا کہ امیر ہونا گناہ نہیں ہے، گناہ ہے۔ تسی سارے اس ٹائم امیر شخص ہو، میں بھی امیر شخص ہوں۔ امیر شخص کون کون آندا ہے؟ یوحنا دے مطابق جس کے پاس 2 کرتے ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس۔ یوحنا دے مطابق ہر وہ شخص امیر ہے جہدے گھر 2 کپڑے نے، 2 سوٹ۔ میرا ایمان ہے کہ جننے بھی اتنے بیٹھے ہو
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, 2-2 ਸੂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਹੋਣੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਟੀ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵੀ ਆਹੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਆਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਇਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਚੇ ਟੁਕੜੇ ਇਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। यूहन्ना के मुताबिक हर वो शख्स अमीर है जिसे को 2 कुर्ते, किस किस के पास 2 कुर्ते हैं घर में? घट तो घट जिसे को 2 सूट है ने कार हाथ उत्ते करो, 2 सूट नहीं है, ज्यादा ने, तो फिर तुसी अमीर ही हो। हुण लाजर कौन है? फिर हर वो शख्स आपके लिए लाजर है जिसको आप डेली देखते हैं कि इसको ज़रूरत है लेकिन तुसी कोशिश नहीं करते। ताड़ी गली की नुक्कर च पिया, ताड़ी गली च रहिंदा है, ताड़ा हमसाया हो सकता है, ताड़ा रिश्तेदार हो सकता है, ताड़े चर्च का कोई मैंबर हो सकता है। हर वो शख्स ताड़े लिए लाजर है, ताड़ा हमसाया भी ताड़े लिए लाजर है। पता भी है, आ सामने वेख्यो, पता भी है तेरे को दवाई लिए पैसे नहीं है, तो ताड़ी जेब भरी है, तो तुसी नहीं दे रहे, तुसी अमीर शख्स हो, वो लाजर है। यसुम से एक मौका तो पूछणगे, मैं गरीब था, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ना दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना दिया, मैं बीमार था, तूने मेरा पता ना किया। लोग कहेंगे यसू तू कब आया हमारे घर? यसू मसीह उनसे कहेंगे जो कुछ तुमने अपने छोटों से किया वो मेरे साथ किया। आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो आप यसू के साथ करते हैं। याद रखियो, ताड़ा हिसाब लिया जाना जे अगर तुहानू पता भी है कि हफ्ता हो गया ताड़ा गवांढी बीमार पिया, तेरे को वाकई दवाई लिए पैसे नहीं है, जे तुसी भी नहीं दे रहे, तुसी अमीर शख्स, मार उन्हें भी जाना, मार तुसी भी जाना। बेशक ताड़ी अपनी दौलत है, मगर खुदा इस चीज़ों को नोट करता है, खुदा इसका बदला लैंदा। हुण अमीर शख्स का की कसूर सी, पर अमीर शख्स का कसूर बनया सी कि तू दिता क्यों नहीं? किसी के लिए कुछ करें, अपनी हेल्प, अपनी डोनेशन, अपनी चैरिटी दिया करें। अगर तेरे को बहुत कपड़े ने, कोई कपड़ाना किसी को दे दोगे, वो भला हो जाएगा, खुदा तुहानू होर देगा। कई लोग सब्जी खराब करके सुट देंगे ने, पर किसी गरीब को नहीं देनी। विआहां शादियां ते मंगण वालियां दे चपेड़ा मार के उन्होंने बाहर घाल देना, उन्होंने बचिया नान नहीं देना। कई लोग एवं नोटा दीयां कापियां सुट्टी जानियां, किसी गरीब ने हाथ ना कह दिता भाई दई, चल भज, उन्होंने एक 10 का नोट नहीं देना। किसी के लिए कुछ करना है तो अपनी जिंदगी में करें। हर शख्स वो आपके लिए लाजर है जो आपकी आंखों के सामने है, और वो जरूरतमंद है। आमीन। अब इसने लाजर को क्या कहना है? अमीर शख्स ने कहता लाजर को भेज। किसको भेज? कि लाजर तो मैनू जानदा, मैं तेरी गली का सा, उन्होंने अपनी गली का लभ्या। लाजर ना तो जानदा सी, लाजर ना डेली मुलाकात है सी, ऐसे लिए उन्हें इब्राहिम को किसी होर नूं नहीं बुलाया। आ कहंदा लाजर नूं भेज। क्या करे लाजर आके? लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा, उंगली ऊपर करें, ऐ तुहाडा पहला पोटा, अपनी उंगली का सिरा क्या करना है? पानी में भिगो कर, ऐसे करें, ऐ मैं जान के कर रहा ताकि नींद ना आए। पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे। किधर आके उंगली लगाए? जुबान पर। ऐ वो शख्स सी, उन्होंने उंगली लाना पसंद नहीं सी करता। अज कह रहा है कि वही उंगली मेरी जुबान ते आके ला, ते मेरी जुबान में तर कर। खुदा खाक तो बुलंदी ते बुलंदी तो खाक ते ले आऊँ। कभी उन्होंने उंगली लाना पसंद नहीं सी करता, जो दी उंगली अपनी जुबान ते लगवाना चाहता। ਉਹਦੇ फोड़ियां ते पीक की वजह ਨਾਲ उंगली लाना पसंद नहीं सी करता। अज उस शख्स को कह रहा कि अपनी उंगली मेरी जुबान से ला, तो बस उंगली आके तर कर जा,
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਡਬੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤੱਕ ਖਲੋਈਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਈ ਤਰਸਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ सिरे ना डबो के तो मेरी ज़बान में तार कर जा। लेकिन इब्राहिम ने उससे क्या कहा? कहता क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा बेटा, इसका मतलब फिर सबूत आ गया कि ये शख्स जो था वो यहूदी था। वो उसको बाप कहता है और बाप उसको बेटा कहता है। कहता बेटा याद कर, सारे बोले क्या कर? पहले शायद तुहानू पता ना होए, अग च भी कोई चल जाए ना जहन्नम च, दिमाग काम करता ज, अखां भी काम करदियां, जुबान भी काम करदी है ते दिमाग भी काम करता ज, मैमरी। इब्राहिम कहंदा याद कर, तुसी अज जो कुछ भी कर रहे हो, तुसी अमीर शख्स की तरह नू ईजी लै रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तुहानू उत्ते याद करवाया जाएगा। याद कर तू फलां टाइम चाह कीता सी, याद कर तेरे को कोई सूट मंगदा सी, याद कर तेरे दर ते आके कोई रोटी मंगदा सी, याद कर तेनू पता सी कि तेरे हमसाए दे कोल दवाई लई पैसे नहीं है। तुहानू एक एक गल याद करवाई जाएगी। इब्राहिम ने उसे कहा याद कर कि तू उहदे नाल की करदा रहा, तेरे बचे हुए टुकड़े खान दा मुश्ताक सी, तूने कदी रोटी नहीं दी, तूने कदी कपड़ा नहीं दिता, तूने उंगली लगाना पसंद नहीं किया। अज याद कर, याद कर, याद कर। आप सबको याद करवाया जाए कि आपने कैसे कैसे जिंदगी गुजारी है। और आगे लिखा है कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका। आज आपके पास बेशक घर में गाड़ी हो, गाड़ियां हो, आपके घर में टाइल पत्थर लगा हो, आपके पास वसाइल हो, अच्छी रोटी हो, लेकिन क्या फायदा आप आग में जाएं, आप जहन्नम में जाएं। सब कुछ था, इब्राहिम उसे याद दिला रहा है याद कर कि तू अच्छी चीजें ले चुका। और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है। क्या पाता है? तसल्ली पाता है, क्योंकि कलाम भी सिखाता है कि वो उसकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। आपके जिस्म में आज गुर्दों का मसला हो सकता है, अगर आपके अंदर ईमान है तो आसमान पर आपका गुर्दों का मसला नहीं होगा। आज तुहाडा बीपी थले उत्ते हो जाता है, तुहाडे अंदर ईमान है, जो तुसीं बादशाह च जाओगे तुहाडा बीपी का मसला तुहानूं नहीं होएगा, तुसीं ठीक होवोगे। आज बेशक तुसीं बड़ी गुरबत देखी है, मगर तुहानूं आइडिया है कि एक दिन तुसी खुदा दे बेटे यसू दे नाल मिल के खाना खाओगे आसमान ते। उत्थे ज़ियाफतां होणगियां, उत्थे खाने होणगे, लेकिन ना तो उत्थे लालच होएगा, ना उत्थे भुख होएगी, लेकिन वहाँ ज़ियाफतें होंगी, वहाँ खाना होगा। आप वहाँ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आमीन। आगे इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाकया है। क्या वाकया है बाजी? गड़ा वाकया है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा पस है बाप। फिर क्या बोला? कलाम खत्म हो लगा जो आखिरी गल जो गौर ना सुने। पस है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। क्या करता हूं? मगर अफसोस मरण तो बाद मिन्नत भी नहीं जे काम आती। तुसीं मिन्नतां करनियां, दुआवां करनियां, रोजे रखने ने, मन्नतां मननियां हुणे ही करनियां। ऊपर याद आपको सब कुछ करवाया जाएगा। आपके जो अजीज दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप अगर किसी के इस दुनिया से जा चुके हैं, वो उधर से आपको याद करते हैं। वो आपको याद करते हैं, उनके ब्रेन मैमरी चलती है। हुण इस शख्स नूं याद आ गए अपने पिछले भैन भरा,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ کہ کسی نو نا میرے گھر بھیج. پڑھیں اس کو. پس اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں. جڑے لوگ اس دنیا تو جا چکے نے، اچھے حصے یا برے چ، پچھلے یاد آتے ہیں، اینوں بھی یاد آئے، کہنا کسی نو پیچھے بھیج میرے گھر. میرے 5 بھرا، کنے بھرا نے؟ 6واں اپنا آپ سی. کہنا میرے 5 بھرا ہے، کیونکہ انہوں پتا سی وہ بھی میرے وانگو سنگ دل. انہوں نے بھی کدی کسی دی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے بھی کدی کسی نو دوائی لے کے نہیں دیتی، انہوں نے بھی کدی کسی لازر نو انگلی نہیں لائی. تو اگر میں اتنے آیا ہاں تو ظاہری گل ہے میرے بھائی بھی اتنے آن گے. کہنا منت کرنا کسی نو بھیج تے میرے بھراواں نو بچا لو تے میرے بھراواں نو جا کے دسن. آگے ابراہیم نے کیا کہا؟ اور وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں. ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں. ان کے پاس کون ہے؟ موسیٰ اور انبیاء. ہو سکتا ہے کہ ساڈے عزیز اسمان تے کہندے ہون کہ ساڈے گھر کسے نو بھیجو، میری ماں دے کول، میرے بھن بھرا دے کول، تے اُتے انہاں نو کہیا جاندا ہوئے کہ انہاں دے کول پاسٹر نبیل ہے، پادری سرفراز ہے، ایلڈر صاحب نے، دیگر خادم نے، انہاں دے کول بائبل ہے، انہاں دے کول گیتا والی کتاب ہے، انہاں دے کول سارے ایماندار نے، انہاں دے کولوں سیکھن. مگر اس شخص نو پتا سی کہ بائبل تے میں نہیں کدی گھر پڑھی، خادمہ دی تے کدی میں نہیں سی سنی، تے میرے بھرا بھی میرے ورگے نے. انہوں آ بھی گل دا پتا سی کہ مینوں 100 واری کیا میں نویں سرے تو پیدا نہیں ہویا، میں بھی سنگ دل رہا، میرے بھرا بھی ادا دے نے. پھر اس نے ایک اور بات کی، پڑھیں اس کو. اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے. ہوں یہ ساری سمجھ آن ڈی اپنے آپ. کہندا میرے بھرا بڑے سنگ دل جے، میں نہیں کدی کسی پادری کو بیٹھا، میں نہیں کدی بائبل پڑھی، میں نہیں کدی موسیٰ دی سنی، میرے بھرا بھی میرے ورگے نے. کہندا ایک گل تے میرے بھراواں نے مننا جے، آپ ہی طریقے بھی دسن ڈیا. کہندا اتھوں کسی نو زندہ کر کے بھیج، لازر نو ہی بھیج دے. وہ ویکھن گیا ہے تے مر گیا سی، زندہ ہو کے آیا، تو جا کے کہے کہ بھائی توبہ کر لو نہیں تے جہنم چ جاؤ گے. تے پھر سننی انہیں، پر یہ غلط خیال سی. تسی ویسے آپ ہی دسو ساڈے جڑے عزیز اتوں جا چکے نے، جو ایک ادھا زندہ ہو کے آ جائے تے کسی چرسی نو کہے چرس چھڑ دے، تے شرابی نو کہے شراب چھڑ دے، نہ پیا کر، مڑ جائے گا؟ کوئی ایماندار اتوں آوے آگے کہے بھائی توبہ کرو، نویں سرے تو پیدا ہو تاکہ تسی بادشاہی چ آ سکو. جڑا ویسے ہی توبہ دی گل تے آندا ہی نہیں، نجات والی گل تے آندا ہی نہیں، بپتسمے والی گل تے آندا ہی نہیں، یسوع والی گل تے آندا ہی نہیں، او دے ولوں بھاویں کوئی مردیاں چوں زندہ ہو کے آئے، بھاویں فیصلہ آبادوں آوے، اونے نہیں سننی. پر خدا نے آ بھی کرتا. کون زندہ ہو کے آیا؟ یسوع مسیح ساڈے لیے زندہ ہو کے آگے لوگوں نے پھر نہیں سنی. تانوں پتا یسوع مسیح نے جب زندہ ہو کے یسوع نے کی کیا سی؟ آخری الفاظ اس شخص نے درخواست کی سی کسی نو زندہ کر کے بھیج، پھر مننا لوگوں نے. یسوع مسیح 3 دنوں بعد جی اٹھے، لوگوں کو نظر آتے رہے، آسمان تے جان لگے، تو کی کہہ کے گئے سی؟ تمام قوموں میں جاؤ، انجیل کی جڑا ایمان لے آئے ان کو باپ بیٹا اور اس کے نام سے بپتسمہ دو. آج بھی کئی اڑے نہیں لیندے. تے وہ شخص کی کہندا سی؟ کہندا کسی نو زندہ کر کے بھیج، پھر سننی ہوندا. پر یسوع زندہ ہو کے آ گیا، انہیں اپنی زبان مبارکہ نہ فرمایا، لوگوں نے پھر نہیں سنی.
ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਜੇ, ਆ ਡੇਲੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਬੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ, ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜਬ ਤੱਕ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਕੈਸੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, मैं तेरे को दुआ करना सीखनी। जिदा शगिरदा ने यसू ने कहा हमें दुआ करना सिखा। सीखने वाली गल तो अज लोगों च है ही नहीं। आज लोग खादमों को क्यों अपने घर बुलाते हैं? पर साहब तुहाडा खाना है, पर साहब तुहाडी दावत है, पर साहब फलाना बीमार है दुआ करन लई आयो। बहुत कम लोग हैं जो इसलिए खदाम को बुलाते हैं, पर साहब आयो तुहाडे को कलाम सीखना, पर साहब आयो तुहाडे को दुआ करना सीखनी। रहम अपने लिए चाहिए जे, अज अपने ते रहम मंगो। तोबा करनी है अज करो, सिगटां छड्डनियां है अज छड्डो, नशा छड्डना है अज छड्डो, माफियां मंगनियां है अज मंगो। आसमान ते कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा आपको इस कलाम पर अमल करने का, गौर करने का फजल बख्शे।